Good afternoon to you all my dear students. Once again I welcome you all of you in my physics class. So students, today we are going to do the numericals on mirror formula and also have to study about the magnification. Okay, first we are going to start with magnification. Magnification. Magnification means what is the size of an image formed by a mirror with respect to the object. ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज कितना बन रहा है. ओके, बाय अ मिरर, दैट इज ओनली द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट मिरर. सो दैट वी डिफाइन इट इज द रेशियो. इट इज द रेशियो ऑफ साइज of an image to the size of an object, to the size of an object. Okay, so this we are written as magnification m is equal to h2 upon h1, where h2 is the size of an image and h1 is the size of an object. This we also defined as it is the ratio. It is the ratio of position of an image, position of an image to the position of an object, to the position of an object. Okay, so this is m is equal to v upon u. So magnification should be defined with two conditions, or in two ways we define the magnification. Okay students, so this is about the basic definition of magnification. Now magnification for the concave and convex mirror. Concave, in concave mirror, when the image is formed real, at that time the magnification is negative. How the magnification is negative when the image is formed real? So this we are going to study now. Now you just think magnification m is equal to h2 upon h1. When the image is real, real and inverted, inverted means downward image. So in that case minus sign is coming. So here minus h2 upon h1. Okay, and within the same way अगर हम यहाँ देखेंगे for v upon u, so here minus v and minus u, minus v minus u. ओके, फाइनली जो हमारा आएगा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ले लें, सो मैग्निफिकेशन शुड आल्सो बी डिफाइंड एज h2 अपॉन h1 v अपॉन u, एंड u इज नेगेटिव हियर, सो हम यहाँ इसको माइनस साइन लगा के दे, यानी एक कॉमन फॉर्मूला हम ये भी बना सकते हैं. ठीक है, बाय इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस. h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. ओके, अगर यहाँ भी हम देखें तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा माइनस h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u. अ सिंगल माइनस साइन इज कमिंग एनीवेयर, कहीं भी एक सिंगल माइनस साइन आएगा. ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल. When the image formed is real. Now after that, when the image formed is virtual, then what is the magnification? Magnification m is equal to minus h2 upon h1. अब देखिए वर्चुअल के लिए हमारा क्या होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव ही क्या आएगा आपका इमेज, और पॉजिटिव ही आपका आएगा ऑब्जेक्ट. So height of an image and height of an object both are positive. So we say that in virtual the magnification is positive. So m is equal to h2 upon h1. और अगर हम v और u के टर्म में भी देखेंगे,
So this formula becomes same, H2 upon H1 is equal to minus V upon U. माइनस आपका किसी एक साइड आ जाए. Now this is for first and second. Second आपका in convex mirror. In convex mirror. In convex the image is always formed virtual. और वर्चुअल इमेज है तो m इज इक्वल टू क्या होगा h2 अपॉन h1. दिस इज पॉजिटिव और फॉर्मूला आपका ये सेम आएगा जो वर्चुअल का है. दैट्स वुड बी h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन. So in this way you have to see. Okay. Now अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ करते हैं. स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. इससे पहले देयर आर सम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स दैट ऑल्सो यू हैव टू डू. बट आज हम थोड़ा आपके साथ में वाटर सेक्शन भी है तो एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे. एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमारे गिवन होते हैं. सो स्टूडेंट्स अब अपनी एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप निकाल लीजिए. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फ्रॉम लेंस, वो हम नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, कॉनकेव मिरर इज देयर and the image is formed virtual, erect and larger. So this is only the condition when the object is placed between pole and focus. Okay, so D answer is correct, between the pole of the mirror and its principal focus. So for question number 2, D is the correct answer. I hope you all understand this much. After that question number 4, 3 आपका लेंस से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are okay, इसमें भी आपका मिरर और लेंस दोनों यूज हो रहा है. आर लाइकली टू बी ओके. नेगेटिव अगर आ रहा है बेटा, नेगेटिव 15 आ रहा है तो नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में होता है और कॉन्वेक्स लेंस में होता है. सो इसका आंसर होगा द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स. दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, no matter how far you stand from a mirror your image appears erect. Your image appears erect. The mirror is likely to be, that is plane mirror. प्लेन मिरर में चाहे आप कहीं भी खड़े हो, आपको जो इमेज है वो आपको ठीक है. और ये आपका हो सकता है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स भी हो सकता है. ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपका जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है. ओके, नाउ आफ्टर दैट 6 इज फ्रॉम लेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखिए सभी स्टूडेंट्स. वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image?
is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. Okay, so we wish to obtain erect इमेज अगर बनेगी सो वर्चुअल एंड इरेक्ट. कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज बनने का सिर्फ एक ही केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड फोकस और फोकस एंड पोल. What should be the range of distance of the object from the mirror? रेंज आपका होगा बिटवीन फोकस एंड पोल 15 के बिलो जहां भी आप रखोगे. What is the nature of the image? Nature of the image is virtual and direct. Is the image larger or smaller than the object? The image is larger than the object. Draw a ray diagram. रे डायग्राम आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल. कई बार आपको रे डायग्राम इसका बनवा दिया है. ओके, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन. So students, you just see, you just take concave mirror, this is pole, this is focus, this is center of curvature, and the object is situated between focus and pole. If this is 15 centimeter, when focus is 15, so you have to put object AB between F and P. One ray is parallel and which is moving, कहाँ से जाएगी वो? फोकस से. सेकंड, अगर आप यहाँ से निकालते हो एक रे जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ऐसे जाके और यहीं से वापस आ जाएगा. नाउ दीज टू रेज आर डाइवर्जिंग ईच अदर, और जैसे ही ये डाइवर्जिंग होंगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे? नाउ यू जॉइन दीज टू रेज इन डॉटेड वे. डॉटेड वे में आप इसको जॉइन करवाओगे. सो दीज टू रेज जॉइन एट दिस पॉइंट. ओके, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ए डैश बी डैश. सो दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ. ओके, so the object is placed from 0 to 15 centimeter. In this, the image is formed virtual and erect. Virtual and erect. Okay, size is larger than object and position is behind the mirror. Behind the mirror. So these are the three things that you have to know about this ray diagram. Now name the type of mirrors used in the following situation. इन सिचुएशंस में कौन से मिरर हम यूज करते हैं? सो हेडलाइट ऑफ ए कार, हेडलाइट ऑफ ए कार के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं. ठीक है, हेडलाइट में कॉनकेव मिरर. ओके, कॉनकेव मिरर. नाउ बी, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल. साइड का जो मिरर होता है उसके लिए हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ओके, कॉन्वेक्स मिरर किस लिए? क्योंकि वो आपको वाइड रेंज प्रोवाइड करवाता है. ठीक है. सोलर फर्नेस, इसके लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं. ओके, सो सोलर फर्नेस का मतलब क्या होता है कि वी जस्ट पुट वन वेरी लार्ज मिरर एंड whole of the rays are pointing at its focus. और फोकस पे हम कुछ भी एक मटेरियल रख देते हैं और वहाँ पे सारी लाइट फोकस पे स्ट्राइक करती है इन वेरी लार्ज अमाउंट, और वहाँ इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि द मेटल और द मटेरियल विच वी आर पुटिंग एट दैट पॉइंट इट शुड स्टार्ट मेल्टिंग.
इवन वहाँ जो उसका टेम्परेचर है वो थाउजेंड्स में हो जाता है। इवन हमारे मेटल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, उससे पिघला सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको सोलर फर्नेस। क्या बोलते हैं? सोलर फर्नेस। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा क्या है। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अभी तो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया नहीं है आपको। ओके, आगे हम करेंगे इसको। नाउ आफ्टर दैट 9 and 10 both questions are from lens. Now question number 11 is also from lens. Question number 12 is from mirror. Now you see question number 12. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Okay, so this is the question that we have to do. इसी में कर लेते हैं बेटा, यही अभी काफ़ी गैप है हमारे पास में। ये हमने जो किया था क्वेश्चन, so we will use mirror formula. हाँ, we use mirror formula here. So this is question number 7 we have done. Now question number 12. Question number 12 सबसे पहले हम देखेंगे बेटा गिवन क्या है। ओके, गिवन में हम देखेंगे an object is placed at a distance of 10 centimeter. So u is equal to minus 10 centimeter. कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, दिस इज 15 सेंटीमीटर। Find the position nature of the image. So you have to find V. V आप फाइंड करोगे पोजीशन ऑफ द इमेज, और साइज आप फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन n. ओके, सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v plus 1/u equals 1/f. V. ओके, तो यू हैव टू फाइंड V हियर। अगर V फाइंड करोगे तो बेटा V अगर फाइंड करोगे एक साइड में ले लो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। नाउ 1/v इज इक्वल टू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रख दीजिए। तो 1/f इज 1/15 माइनस 1/-10, दैट इज 1/15 प्लस 1/10, 1/15 ओके प्लस 1/10, 1/15 प्लस 1/10। अब इसका आ जाएगा बेटा 1/v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए 15/10। सर इमेज डिस्टेंस इक्वल टू पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये 6 कैसे आएगी? 15 और 10। सर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम इज इक्वल टू 30 एलसीएम। ओके, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 30 और अपॉन 15 जाएगा 2 टाइम्स प्लस 10 जाएगा ये आपका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 5/30 को 1/6, सॉरी 5/30। सो 5 6 जा 30, so v is equal to 6 centimeter and 6 is coming positive here. कैसा आया? पॉजिटिव। अब देखिए u आपका 10 पे रखा है और v आपका 6 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। नाउ यू जस्ट फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, सिंस मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v/u। नाउ यू पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। सो हियर 6 और यहाँ आएगा आपका -10, तो 6/-10, सो आपका ये आ जाएगा -0.6। सर ओके सर ओके, हाँ बेटा बताइए। सर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इक्वल टू -v/u होता है सर, प्लस का v/u। अच्छा, इसके लिए हम देखेंगे ये आपका u इज इक्वल टू -10f15, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए आपका होगा बेटा m इज इक्वल टू पॉजिटिव v है और माइनस v/u,
क्या होगा बेटा इसके लिए फॉर्मूला माइनस v अपॉन u, तो ये माइनस है फिर ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओके वेरी गुड, ठीक है बेटा। कैसे हमने निकाला इसका मैग्निफिकेशन, क्योंकि v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, सो v अपॉन u हमने निकाल लिया इसको। इज इट क्लियर नाउ? Yes, नाउ sir. आफ्टर दैट Yes, sir. so within the same way you have to do the question number 14. question number 14 अब आप कर सकते हो in homework. The same calculations you have to do in question number 14. अब कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो हम आपको बता देंगे, इसके बाद हमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 you have to do in homework. Now after that there is one more question, that is question number 15. Okay, these two questions are there and these both questions are of same type. जैसा हमने अभी किया है ये बिल्कुल सेम है, so you have to do question number 14 and 15 okay in homework.